to the second video of application of trigonometry. Now, we will do little one step tougher question where two right angles are involved in today's video, because the first basic concept I've already taught you. All right, let's move on to question number 6. I told you very clearly figure is the most important thing in a application of trigonometry question. So let's read the question carefully and draw the figure. A 1.5-meter tall boy, there's a boy whose height is 1.5-meter tall, is standing at some distance from a 30-meter tall building. There is another building which is 30-meter tall. Okay, the angle of elevation from his eye to the top of the building, the angle of elevation, now this, let's consider this is the eye, from the eye till the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. तो suppose करिए जो boy है ये उसका आई लेवल है और वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक कर रहा है, यानी कि आफ्टर सम टाइम वो बिल्डिंग के पास आ गया. तो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस चिल्ड्रन. So your figure will look something like this. Let's talk about, suppose here is the boy, here is the building, and the height of the boy is 1.6 meter. Suppose this is his eye level, and initially the angle of elevation from his eye to the top of the building was 30, and when he moves closer, बेटा जब हम किसी किसी चीज के पास जाते हैं तो हमें और ऊपर देखना पड़ता है, तो एंगल इंक्रीज होगा. तो ये चीज याद रखनी है. अगेन बॉय ही वॉक कर रहा है तो ये डिस्टेंस जो है फिर दोबारा से सेम ही रहा, मतलब 1.5 था तो 1.5 ही रहा, एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 meters. So this is 30 meters. I hope you people have understood the question. यहाँ पे गलती सिर्फ ये होती है, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब यहाँ 60 और यहाँ 30. ये कॉमन सेंस है. आप जितनी दूर खड़े रहोगे उतना ही नेक पे स्ट्रेन कम पड़ेगा, उतनी नेक आपको कम राइज करनी पड़ेगी. दैट मीन्स एंगल छोटा होगा. जितना पास आप जाओगे और बिल्डिंग का टॉप आपको देखना होगा उतना ही आपको और ऊपर करना पड़ेगा, नेक को और ज्यादा ऊपर फ्लेक्स करना पड़ेगा, तो एंगल बड़ा होगा. तो ये जो ब्लू से हाईलाइटेड है ये गलती नहीं करनी है. राइट? ओके. So now let's move. Figure is drawn and now the question becomes very simple. पहले आप इसकी मार्किंग कर दीजिए. A, B, C, D and let's take this point as E. तो अब तो क्वेश्चन चेक करिए, बहुत सिंपल बन गया. Can I say, अब पहले निकालना क्या है? Find the distance he walks towards. Suppose ये F. Distance he walks towards the building. So यानी कि I have to find AF. This is my question. Again, ये meters में ही, units are very important children. तो ये सारा कुछ meters में ही आएगा. So we have to find AF. So let AF is equal to X meters. Right? And क्योंकि हमें triangle की बात कर रहे हैं तो हमें obviously, suppose ये point G है तो हमें ये भी चाहिए होगा. तो EG को मैं Y ले लेती हूँ. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चेक करिए. कैन आई से राइट एंगल ट्राइंगल मुझे कौन कौन से दिखते हैं? सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है दैट इज ट्राइंगल DGE. कैन आई से DG इज 30 minus 1.5 चिल्ड्रन. अगेन 1.5 क्यों? अगर ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये भी तो 1.5 होगा क्योंकि बॉय की हाइट तो कांस्टेंट ही रहेगी चाहे वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक कर रहा हो. राइट? So these two are parallel lines because these angles are 90 degree. So that is why. So this is 28.5 meters. Right children? DG आ गया. अब हम चेक करो. इसी ट्राइंगल में हम FG निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे? हमें सॉरी EG हमें निकालना है. हमें DG given है. So EG is what in the same right triangle I am considering?
EG is base and this is perpendicular, right? So which is, you can say, cot 60, right? So cot 60 is EG upon 28.5. So cot 60 tan 60 का reciprocal, that tan 60 root 3, तो ये 1 by root 3. ये हमारा EG आ गया, इसे यहीं छोड़ देते हैं. अब हम चलते हैं दूसरा राइट ट्रायंगल. दूसरा राइट ट्रायंगल मुझे क्या दिख रहा है? DGB, राइट? ये पॉइंट B था, राइट? सो अब सेम लॉजिक मैं यूज करूं. अगर मुझे, वी कैन यूज tan ऑल्सो, सो यू डोंट हैव टू वरी. इसमें मैं tan यूज करके दिखा देती हूँ, हालांकि नथिंग इज गोइंग टू चेंज. सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अगेन 28.5, यानी कि DG. मैं दोबारा दोबारा ये सेम चीज नहीं लिख रही हूँ. DG upon the base is now x plus y, children. So this was our y which has already come. So tan 30 is what? 1 by root 3. X plus y is equal to 28.5. So x हमें निकालना है. x is equal to 28.5 root 3 minus y हो जाएगा बेटा. पुट कर दीजिए. 28.5 root 3 minus 28.5 upon root 3. Please you have to take the LCM. So it will be x. Can I take 28.5 common बेटा, ताकि मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े? तो root 3 into root 3 3 minus 1 by root 3. Please rationalize. So this is 2 into 28.5 root 3 upon 3 meters. You can, this is your final answer. Again मैंने बोला था आंसर कभी भी रूट में नहीं जोड़ने हैं. So this is how you solve when there are two right triangles involved. Okay. So I will just help you out in making the figure and you can do the solving on your own. Suppose you have to do the next question. Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the top, bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of the building. There's a building and there is a tower fixed on the top of the building, right? Just let me do a little undo. Here. Again, let me take a straight line. Tower thoda sa wo ho gaya. Here, right? Now, the question says, from a point on the ground, there's a point on the ground. From this point on the ground, the angle of elevation of the bottom, this is the bottom of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower. Now, first let me just show you. This is question number 7 for you. बिल्डिंग के टॉप पे टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशंस दोनों गिवन है. बॉटम ऑफ द टावर का जो कि 45 डिग्री है एंड टॉप ऑफ द टावर का जो कि 60 डिग्री है. और आपको क्या गिवन है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग गिवन है. बिल्डिंग का हाइट इज 20 meters and you have to find the height of the tower. So A, B, C and D. Again, let height of the tower equals to say h meters. Again, I need this also to find h. So let AB equals to x meters. अब आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो. राइट ट्राइंगल आपको दिख ही रहे हैं. इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले
ये है 20, आई एम टेकिंग tan 45 नाउ. Tan 45 is BC upon AB, children. Tan 45 1 होता है. BC is 20 and this is X, right? So X is equal to 20 meters. Similarly, अब आप एक और right triangle आपको क्या दिख रहा है? Triangle ABD. Again, let's take, for you it is easier to take tan only क्योंकि एक ही एंगल लर्न करना पड़ेगा. नाउ अगेन अगर मैं tan 60 ले रही हूँ जो कि बड़े ट्राइंगल का पार्ट है, दैट विल बी बिल्डिंग प्लस टावर का हाइट जो कि हमने h लिया है अपॉन x, राइट? सो tan 60 √3, 20 plus h upon 20, so h is equal to 20 √3 minus 20 meters. So 20 common, √3 minus 1. अगर √3 की वैल्यू गिवन है 1.732 तो आप पुट करके वैल्यू पॉइंट्स में निकाल लो. अगर नहीं गिवन है तो आप यही आंसर छोड़ दोगे. That the height of the tower is this, right? Okay. Similarly, if you have to do question number 8, let me again, I have already taught you a lot of methods. You can do it on your own. I will just help you out with the figure only. Question number 8 says, a statue 1.6 meter tall. Again, एक statue है 1.6 meter tall, stands on the top of a pedestal. Basically, pedestal क्या होता है? Pedestal एक, अगर आप कभी रोड पे चले हो तो रोड पे एक छोटी सी रेज्ड पोर्शन होती है साइड, रोड के साइड में, दैट इज नोन एज पेडेस्ट्रियल. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सो एक स्टैचू ऊपर खड़ा है टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल. कैन आई से पेडेस्ट्रियल की भी कुछ ना कुछ विड्थ होगी और स्टैचू की तो है ही है हाइट, राइट? और पेडेस्ट्रियल की भी हाइट होगी. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू. अगेन, आप एक ग्राउंड पे खड़े हो and from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue. Okay. This, suppose this is where the top is touching. I am unable to meet the touch, but let's consider this is a point where they are touching. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal, again, this was your blue color was the pedestal. Now, check कर लेते हैं क्या क्या है. This was pedestal and this is the statue point, right? Red is the statue and this one is the pedestal, height of the pedestal. पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप था वो 60 है और ये वाला जो है ये 45 है. अब स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है और आपको हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल यानी कि ये h मीटर्स फाइंड करना है. अगेन इसे x मीटर्स ले लो. अगेन लॉजिक बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा, तो यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, राइट चिल्ड्रन? Let's move on to question number 9. This was 8 for you. 9. Again, I'm just helping you out with the question. The angle of the figure, the angle of elevation of the top of the building from a foot of the tower. एक टावर है एंड एक बिल्डिंग है. चेक करते हैं कौन सी है. अब आप कहाँ हो? The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. Suppose ये टावर है, ये जो एंगल है ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द from the foot of the tower is this, top of the building to the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is this, suppose. Okay, let me mark it for you. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. तो ये मैंने टावर लिया है. Let me take a pencil. और ये बिल्डिंग है. ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है
ये 30 डिग्री है, टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ये 60 डिग्री है. अगेन ए बी सी एंड डी. आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई. ये 50 मीटर्स हाई है, ये फाइंड करना है. तो इसको h ले लो, इसे x मीटर्स ले लो. अगेन सेम लॉजिक. आपको राइट ट्राइंगल दिख ही रहा है. कौन कौन से राइट ट्राइंगल से रिलेशन ले लोगे? इन ट्राइंगल ए सी डी आपको एक दिख जाएगा, राइट. इन ट्राइंगल सी ए बी आपको दूसरा दिख जाएगा. जब आप सी ए बी यूज करोगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी मीटर्स में, और इस x की वैल्यू को आप ऊपर पुट कर दोगे तो आपका h आ जाएगा. This is how you will do the question, right? All right. Now, let's do question number 10. Again, what does question number 10 says? Question number 10 says, दो towers है, two poles are of equal height standing opposite each other on the either side of the road. यहाँ पे बीच में रोड है और दो टावर्स हैं इक्वल हाइट के. ओके. विच इज 80 मीटर वाइड. जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है. फ्रॉम अ पॉइंट, ओके, कोई एक पॉइंट है, एंगल उस पॉइंट पे हम खड़े हैं रोड पे, और उस दोनों टावर्स का जो एंगल है वो गिवन है हमें 60 एंड 30. सो बोथ पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट. सो हाइट h मीटर्स ले लेते हैं और इसकी भी h मीटर्स ले लेते हैं. सो A B C and D both are equal. अब एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रोड का जो है विड्थ है वो 80 है. एक का जो एंगल है वो 60 है और दूसरे का जो एंगल है वो 30 है. मैंने क्या बताया था? जितना पास आप खड़े होगे उतना बड़ा एंगल. तो 60 और ये 30, राइट. क्योंकि मैंने ये वाला पॉइंट इसके पास लिया है, राइट. तो ये पॉइंट ई हो गया सपोज. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. यानी कि हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें ए बी सी डी जो कि h मीटर्स है हमें वो भी फाइंड करना है, और हमें BE और हमें ED भी फाइंड करना है. सो कैन आई से लेट B इज इक्वल टू x मीटर्स चिल्ड्रन. तो अगर ये x मीटर होगा तो ED अंडरस्टूड है कि वो 80 माइनस x मीटर्स होगा, राइट. सो अगेन दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख ही रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. सो इन ट्राइंगल ABE एंड इन ट्राइंगल EDC दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है. इसमें tan 60 इक्वल्स टू h बाय x आ जाएगा. तो tan 60 √3 होता है, √3x इज इक्वल टू h आ गया. ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा? tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x चिल्ड्रन. क्योंकि अगर ये x है तो ये 80 माइनस x हो जाएगा, राइट. सो tan 30 की वैल्यू अगेन पता ही है, चेक करिए. 80 माइनस x इज इक्वल टू h √3. h की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ऊपर आ ही चुकी है, √3x. दिस इज फ्रॉम 1. सो 80 minus x. So 80 minus x is equal to 3x. √3 into √3 3. So 80 is equal to 4x. So x is equal to 4 से डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, 20 मीटर्स. सो एक पॉइंट 20 मीटर दूरी पे है जो कि 60 वाला एंगल है, और दूसरा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर्स की दूरी पे है. और हाइट आप निकाल ही सकते हो, x की वैल्यू यहाँ 20 √3 मीटर्स. सो h विल बी 20 √3 meters. And the next, the point E जो है that will be 80 minus 20, that is 60 meters. So this is your answer. अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं?
वो पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली बोल देते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है, तो वो इसको 40 और इसको 40 लेके चल लेते हैं, जो कि गलत है बेटा। अगर 40 अगर इक्वल पॉइंट होगा और हाइट भी इक्वल है, डोंट यू थिंक ये एंगल भी इक्वल होंगे? सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक, दैट्स द मिस्टेक विच चिल्ड्रन डू इन क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन ऑलरेडी आपको सब कुछ गिवन ही है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अगेन एच फाइंड करना है, इसे एक्स ले लीजिए। अगेन दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख ही रहे हैं, ए बी सी, एंड इन ट्राइंगल ए बी डी। अगेन कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, टैन थीटा यूज करो क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है, राइट? Okay, similarly let's do question number 12. I will just help you out with the figure. From a top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower, एक उन्होंने क्या किया है, एक बिल्डिंग दे दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि टावर जो है वो बड़ा होगा बिल्डिंग से। This is how your figure is going to look like. आगे बढ़ते हैं, ये 7 मीटर्स है बिल्डिंग, और इससे इसके टॉप से हम एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है हमारा 60, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा ये टावर है, बिल्डिंग से टावर को देख रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो दैट इज वाई टावर को मैंने बड़ा बनाया। आई होप दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, चेक करो, ये जो एंगल है डिप्रेशन ऑफ द फुट, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दिस इज 45। ओके चिल्ड्रन, यहां से हम यहां देख रहे हैं, तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, क्योंकि ये 45 है बेटा, तो ये भी 45 होगा। दीज एंड दिस आर पैरेलल लाइंस सिंस 90 डिग्री एंगल्स आर इन्वॉल्व। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अगेन सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो अगेन आपको लॉजिक पता है, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये 7 मीटर्स होगा, और ये हमें नहीं पता। अगर ये x मीटर्स है बेटा, तो ये भी x मीटर्स होगा, राइट? और ये हमें h, सपोज ये h फाइंड करना है। सो हाइट ऑफ द टावर विल बी h प्लस 7 मीटर्स, बस इतना याद रखना है, राइट? अगर इसे h लिया तो, अगर इस पूरे को h लिया है, पूरे मतलब नीचे तक को h लिया है, तो हाइट तो आप सिर्फ कैपिटल H निकालोगे, अदरवाइज आप स्मॉल h प्लस h दोनों निकालोगे। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, ये छोटा राइट ट्राइंगल एंगल लेना है, ठीक है? दिस इज ए, सो ए बी पहले वाला जो लेना है दैट इज ट्राइंगल सी ए बी। तो उसमें से आप x की वैल्यू निकाल लोगे tan थीटा यूज करके, और जब x आ जाएगा तो आप इस ट्राइंगल में चले जाएंगे, ट्राइंगल बी ई डी, तो आप h की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट the next question, children. As observed from the top of a lighthouse, there is a lighthouse. एक lighthouse है. From the sea, the angle of depression of the two ships is 30 and 45. एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है और दूसरे का 45 है। आगे पढ़ लो कि शिप क्या ऑपोजिट साइड है या सेम साइड है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ओके, तो इसका मतलब सेम साइड है। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ओके, ये हो गया आपका फिगर। सो ये हो गया 75 मीटर हाई लाइट हाउस, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्वियसली लाइट हाउस के टॉप से आप देख रहे हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये और ये, तो ये क्लियर है। छोटा वाला एंगल 45 है, बड़ा वाला एंगल 60 है।
तो ये हो गया, क्योंकि ये वाला 60 है तो ये 60 हो गया, ये 45 है, ऑल्टरनेट एंगल्स चिल्ड्रन, तो ये भी 45 हो गया. So this is A, this is B, this is C, this is D. These are the two ships, C and D. Find the distance between the two ships. तो basically CD find करना है, X meters. और इससे again आप Y ले लो. This is very very simple. Again आप पहले ट्राइंगल ए बी सी ले लोगे, आप y का आंसर निकाल दोगे tan थीटा यूज करके, उसके बाद आप ट्राइंगल ए बी डी ले लोगे, आप y की वैल्यू भी पुट कर दोगे और आपके पास x आ जाएगा. दैट्स योर कॉन्सेप्ट, राइट? ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 14. अगेन द एंटायर फिगर इज गिवन टू यू. इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. 1.2 मीटर टॉल गर्ल, दिस इज 1.2 मीटर, ये याद रखना है क्योंकि लड़की की हाइट मेंशन है. 1.2 meter tall bird spots a balloon moving with the wind in the horizontal line of the at the height is 88.2 from the ground. ये पूरा 88.2 from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye is 60 degree and after some time it reduces to 30. तो पहले बलून पास था तभी एंगल बड़ा था 60, थोड़ी देर बाद बलून दूर चला गया जो कि नॉर्मल है और जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया, राइट? अब बस कुछ नहीं है, बस ये चीज याद रखनी है क्योंकि हम ट्राइंगल ये कंसिडर करेंगे ए बी सी और सपोज ये डी और ई, तो हमें जो सी बी लेना है दैट विल बी 88.2 माइनस 1.2. बस इतना सा है जो तुम्हें याद रख, 87 मीटर्स को आपको सी बी लेके चलना है एंड देन यू हैव टू कंसिडर द ट्राइंगल्स. दैट्स इट. फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. डिस्टेंस ट्रैवल्ड मीन्स निकालना क्या है हमें, डीबी. डीबी निकालना है जो कि क्या होगा, हमें ए बी माइनस ए डी चाहिए. तो क्योंकि ये वाली 87 है बेटा, तो डोंट यू थिंक ये भी 87 होगी, राइट? सो नाउ यू हैव टू डू, हॉरिजॉन्टल लाइन में बलून ट्रैवल कर रहा है सो डोंट हैव टू वरी अबाउट द हाइट. बलून ऊपर नहीं, सेम लाइन है. तो नाउ यू कैन फाइंड आउट. ओके चिल्ड्रन, आप पहले छोटे ट्राइंगल से इन ट्राइंगल ए डी ई आप ए डी फाइंड कर लीजिए और उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी सी आप ए बी फाइंड कर लीजिए. टैन थीटा, दोनों में टैन थीटा यूज होगा और यहाँ वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ हॉट क्वेश्चन. दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट है नहीं. कैसे, देखें. अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. एक हाईवे है, पहले फिगर बना लेते हैं. there's a highway which is leading to a foot of the tower. Okay, ये एक टावर है. A man standing on the top of the tower observes a car at a angle of depression of 30 degree. ये एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि कितने डिग्री एंगल पे है, 30 डिग्री एंगल पे है, डिप्रेशन. ओके, अब आगे चलते हैं. which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. वो कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से फुट ऑफ द टावर के पास आ रही है एंड आफ्टर 6 सेकेंड उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है. तो चेक करते हैं क्या है. सपोज लेट मी टेक अ सेपरेट कलर. हियर वाज कार, दिस इज टावर एंड let me show you the angle of depression. सो सबसे पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कार ऑब्जर्व कर रहा था वो 30 डिग्री पे है और आफ्टर सम टाइम कार इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है 60 पे. तो ये 60 हो जाएगा और वो सम टाइम गिवन है 6 seconds. Suppose this is A, this is B and this is C where the car is there. After some time वो D पे आ गई 6 seconds में and the car is moving with a uniform speed. So let
the uniform speed equal to x मीटर पर सेकंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि टाइम मुझे सेकंड में दिया, और स्पीड को मुझे इसलिए लेना पड़ा x बेटा क्योंकि मुझे डिस्टेंस तभी मिलेगा, और मेरी सारी कैलकुलेशन जो है वो डिस्टेंस से ही होती हैं. सो डोंट यू थिंक वी नो द फॉर्मूला, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस cd will be speed into time. स्पीड हमने x ली है, टाइम हमें 6 सेकेंड्स गिवन है. So 6x will be the distance in meters. Right, children? So can I take this as 6x? I hope it is clear. Now let's move. You have to find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा है. Again, time taken for the distance BD we have to find out. जिसके लिए हमें BD का distance पता होगा. Let's take it as y, right? Or that's it. Okay, children? So, and let me take the height of the tower as h. Let BD is equal to y meter and AB equals to h meters. Again, मुझे triangles दिख रहे हैं. In triangle ABD, can I say again same, tan 60 is h by y, tan 60 root 3, right? So this is my value of h. Let's move to the second triangle जो मुझे दिख रहा है. In triangle ABC, now tan 30 children, tan 30 is h upon y plus 6x. I hope you will remember कि 6x हम already निकाल चुके हैं CD. तो tan 30 is 1 by root 3. h की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई है √3y, y plus 6x. So can I say y plus 6x is equal to √3 into √3, 3y, यानी कि 6x is equal to 3y minus y. So 6x is equal to 2y या y is equal to 2x. ये आ गया मेरे पास एक रिलेशन. अब मुझे फाइंड करना था टाइम. So time, again from the same formula, time is distance traveled, यानी कि BD upon speed of BD. So distance traveled is y upon speed was x, क्योंकि speed तो यूनिफॉर्म ही रहेगी. So it is 2x by x. चेक करिए. ओ ओ 2 1 2 3, यहाँ पे 3 आएगा बेटा, सॉरी. So how much time is traveled? Time is taken 3 seconds from the point. I hope the question is clear. It looks little difficult but it is not. तो ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी टाइम का रिलेशन है उसमें स्पीड कांस्टेंट होगी तो उसे हमेशा x ले लेना, right? All right. Now the last question, which is again a HOTS question but not that difficult. ये भी एक HOTS है, higher order thinking skill. Again, the question is not that difficult. The angle of elevation of the top of the tower from the 2 point. Again, there is a tower and the angle of elevation from the 2 points of a distance 4 and 6 4 and 9 from the base of the tower in the same straight line are complementary. Let me tell you, एक पॉइंट 4 के डिस्टेंस पे है और दूसरा पॉइंट 9. सो सपोज ये टावर है AB. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 फॉर यू. ये C है और ये D है. एक पॉइंट जो है बेटा वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और दूसरा पॉइंट जो है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे है. तो ये गलती पहले तो नहीं करनी है. लोग इसे 4 और इसे 9 ले लेते हैं. डोंट डू दैट. ओके, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. In the same straight line with it are complementary. So what is meant by complementary? कि एक अगर थीटा है और दूसरा 90 minus theta होगा, right? So you have to prove that the height is 6 meters.
Okay, so this basically is not in your CBSE syllabus since complementary angles वाली जो exercise है वो cut down हो गई थी, but still हो सकता है कि वो ये angle ही दे दें, ये 30 दे दें, ये 60 दे दें, या ये भी 45 दे दें, ये भी 45 दे दें, मतलब कुछ भी वो दे दें, तो भी ये question कैसे करना है. Again the question is not that difficult. Tower की जो height है, this was your tower. Tower की height को h ले लेना है, ये x ले लेना है और ये y ले लेना है, right? या ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, तो ये पूरा, तो एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है, ट्राइंगल ए, सॉरी ट्राइंगल बी ए सी, ए हमें जो 90 डिग्री है वो हमेशा सेंटर में रखना होता है, सो tan थीटा इज h by x, राइट. सिमिलरली इन ट्राइंगल BAD is again tan 90 minus theta equals to h by 9, ये x की जगह 4, राइट चिल्ड्रन. सो ये cot थीटा हो गया है, बेसिकली h by 9. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, दिस वाज नॉट इन योर सिलेबस, राइट चिल्ड्रन. सो ये आप ये कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे वो लोग, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन को आना होगा तो ये एंगल को डिफाइन कर देंगे और h निकालना होगा. तो आप क्या करोगे, एक h की वैल्यू यहाँ से निकाल के, या एक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के दूसरे थीटा में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. और अगर इस केस का क्वेश्चन है तो इसको tan थीटा इज 9 बाय h आ जाएगा. अब आप इसे इक्वेट कर लोगे 1 और 2 को और आपका आंसर आ जाएगा. सो h by 4 is equal to 9 by h. So h square is 36. So h is root 36. और क्योंकि पॉजिटिव है तो 6 मीटर्स, राइट, जो कि प्रूव हो गया, राइट. सो बेसिकली अगर बोर्ड एग्जाम में आना होगा तो वो थीटा और 90 माइनस थीटा नहीं देंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिलेबस में नहीं था, तो हो सकता है वो थीटा की जगह कोई वैल्यू डिफाइन कर दे. ऑलराइट चिल्ड्रन, so if you have any doubt in the questions related to heights and distances, and there are only questions जिसमें दो right angle triangle है, so don't refer to too many books and get confused when the boards are nearing. But हाँ, अगर तुम्हें concept को clear करना है तो you can do any question you want. All right. So thank you very much. If you still have any doubts, please leave in the comments below.